Everyone. Welcome to my channel, FinDoc Agronomy. And today I'm here to make the second video of the Reddy and Reddy series. So let's start with the first chapter, which is Introduction into Agronomy. Okay, wait a moment. इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी सो इस चैप्टर में बेसिकली आपको कुछ ही चीजें याद करनी है। जो चीजें आपको याद करनी है वो मैं आपको बता दूंगी, और जो चीजें छोड़नी है उसको आप छोड़ दें। और ये चैप्टर एक बार ही पढ़ के उसके कुछ 10-15 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके नोट्स बना लें और फिर इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी। Agriculture and agronomy are synonymously used, though through agronomy is a branch of agriculture science. So agriculture is a big term, उसका एक branch है agronomy. Okay, agriculture is a big term and उसके अंदर बहुत सारी branches हैं जिसमें से एक branch है agronomy. Similarly, agronomy and crop production are used synonymously. agronomy से हम क्या समझते हैं? agronomy में हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। कैसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन? फील्ड क्रॉप का प्रोडक्शन, जैसे कि राइस, वीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर में क्या आ जाएगा? लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हॉर्टिकल्चर में आता है। सो एग्रोनॉमी में हम क्या करते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन। कौन से क्रॉप का प्रोडक्शन? फील्ड क्रॉप का प्रोडक्शन। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप स्टार्टेड फ्रॉम टाइम immemorial. Agronomy is a science started recently in the first decade of 20th century. This is not, you do not have to remember this. I'll tell you what you have to remember. So the definition is a term agriculture is derived from Latin word. One should know about this. That agriculture Latin word से derived है. The first word is agar or agri, which means soil, and cultura means cultivation. Agriculture is a very broad term encompassing all aspects of crop production, livestock farming, fisheries, forestry, etc. Okay, एग्रीकल्चर एक बहुत ब्रॉड टर्म है। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं। बहुत बार बच्चे गलत समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर इज ओनली अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन। नो, it is crop production, flood livestock farming, fisheries, forestry, horticulture. All are these comes under the agriculture. Then, agronomy is a branch of agricultural science which deals with principles and practices of soil, water, and crop management. Very important definition. Why? Because here it is saying that in agronomy, what we do, we manage soil, we manage water, we manage crop. Okay? There are principle and practices through which we manage soil, water, and crop. Okay? This term, this agronomy, is derived from Greek word agros, which means field, and nomos means to manage. Means in agronomy, what we do is we manage the field. And in field, what we do, we manage soil. There is water. Water means irrigation, okay, and crop management. So these are the things. So one thing I want to say is that agronomy contain this Y at the end. Okay. Generally, not all the time. Generally, when the word has Y in the at the end, then the like most of the time क्या होगा कि वो Greek word से originated है. This is a thing which one has to remember. Okay. So it is Greek word agros, which means field. Nomos means to manage. Then let's move forward. In recent time, agronomy has assumed newer dimensions and can be defined as a branch of agriculture science that deals with methods which provide favorable environment to the crop of higher productivity. So agronomy is a branch of agriculture science जिसमें हम वो methods use करते हैं जो environment के लिए favorable हो और crop का productivity हायर प्रोडक्शन हम अचीव कर सकें। ठीक है, एग्रोनॉमी का मेन एम है ये। Environment is defined as the aggregate of all the external conditions and influences affecting the life and development of an organism. Not that much important. Here the Norman is Norman E. Borlaug, who is the father of Green Revolution. Okay,
So in 1980, he gave a definition, which is a very good definition, I think, because here he has told that agronomy is a science of manipulating the crop environment complex with dual aims of improving agricultural productivity and gaining a degree of understanding of the process involved. नॉर्मन जी कहते हैं कि एग्रोनॉमी जो है वहां पे हम क्रॉप एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। क्या है हमारे हमारे दो एम है उसके पीछे। पहला, हमें क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। दूसरा, हमें वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे वो हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है, उसको हमें समझना है। पहला हमारा काम है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। दूसरा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना थ्रू द प्रोसीजर विच इज गोइंग बिहाइंड द प्रोसेस। ओके, then it's very important events in the history of agriculture, it's very important. I'll upload a PDF जो इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स होंगे, आपको वो पढ़ना है। सो इसको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर इन JRF इट वाज आस्क्ड। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो फर्स्ट इज, हम सबको पता है that 10,000 BC में we started hunting, gathering and all. Okay, this is not important. Important is from 8,700 BC. So 8,700 BC, what was started was the domestication of sheep. The first animal to be domesticated is sheep. Okay, the second after 10, like after 8,700, it is 7,700 BC is domestication of goat. Then the first crop which is started cultivation जिसका start हुआ, that is wheat and barley. 7,500 BC. Okay, the first crop which is humans started to cultivate is wheat and barley. कई सारी वेदों और जो पुरानी अपनी पौराणिक किताबें हैं उसमें भी इनका जिक्र है। सो ये आपको ईयर याद करना होगा कि रेड्डी एंड रेड्डी इज अ वेरी ऑथेंटिक बुक फ्रॉम दिस JRF एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Then 6,000 BC, domestication of cattle and pigs. 4,400 BC, cultivation of maize. After wheat and barley, what is cultivated is maize. Okay. Then 3,500 BC, cultivation of potato. 3,400 BC, wheel was invented. These are the important things which happen in the past. So it is important for you to remember from the JRF point of view. 3000 BC is bronze was used to make tools. Bronze tools बनाने के लिए यूज होने लगा 3000 BC में। 2900 BC plow was invented. यहाँ पे दो चीजें हुई हैं, ठीक है। 2900 में plow was invented and irrigated farming started, ठीक है। 2700 BC silk moth domesticate किया गया था, कहाँ पे, चाइना, ठीक है। 2300 BC is cultivation of chickpea, pear, सरसों, cotton. Okay, and buffalo आप याद कर लें, यहाँ पे cultivation of chickpea, सरसों, cotton and buffalo is fine. No need to remember other things. 2200 BC, cultivation of rice. Okay, it's very important. Rice is a very important food crop for India and world also. It is a staple crop. 1800 BC, cultivation of finger millet, which is a millet. आजकल मिलेट का बहुत बोलबाला है, ठीक है। तो क्योंकि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया था बाय UN, क्योंकि इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था। ओके, सो नाउअडेज मिलेट्स आर वेरी पॉपुलर एंड लोगों का ध्यान फिर से मिलेट्स की तरफ आकर्षित किया गया है क्योंकि इट्स वेरी न्यूट्रिशियस, न्यूट्रासिटिकल्स हम इसे कहते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं ये, ठीक है। Then 1725 BC, it is the cultivation of sorghum. It's a coarse millet. Okay. Then 1500 BC, cultivation of sugarcane, and the second thing is irrigation from wells started. Then 1400 BC, use of iron. 15th century AD, cultivation of sweet orange, sour orange, wild brinjal, pomegranate. Just read it one time.
If you remember it, it's fine. If not, it also fine. Okay. In 16th century AD, introduction of several crops into India by Portuguese, very important. इसमें important है potato, sweet potato, cassava. Cassava is जो जो साबूदाना बनता है ना, वो कसावा जो है उसके रूट का जो लाइक उसको क्रश करके जो मिल्क निकलता है उससे बनता है, ठीक है। तो साबूदाना जिससे बनता है दैट इज कसावा। टोमेटो, चिलीज, papaya, guava, groundnut, tobacco, American cotton, and rubber. These are the important things which you need to remember that in 16th century AD, these were introduced in India by Portuguese. Okay. Then the center of origin of agriculture, not so important, so I'm skipping that. You just read it one time and it's done. Okay. This is also not important. Here, this line is important. India's most important contribution to world agriculture is rice, which is a staple food crop of most South, Southeast, and East Asia. Okay. And sugarcane, number of legumes and tropical fruit like mango are also native of India. Native of India means it is originated in India. Okay. Then this is also you have to skip. This is all nonsense given. Nonsense in the sense from the examination point. Okay. Indian agriculture is predominantly of the subsistence type. Subsistence क्या होता है? Like in India, majority farmers are marginal farmers. Marginal farmers have like 1 or 2 acre जिनके पास जमीन है, ठीक है। तो ऐसे ही ज्यादा फार्मर्स हैं हमारे इंडिया में। तो वो फार्मर्स क्या करते हैं कि अपने लिए जो जितनी उतनी छोटी से लैंड में जितना राइस हो रहा है वो उनकी फैमिली के लिए ही काफी होता है, बस मतलब उससे ज्यादा नहीं होता कि वो उसको बेच पाए, कभी कभार हो जाता है। तो जब कोई भी क्रॉप या खेती जो कर रहे हैं हम, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो रहा है लेकिन हम उसको बेचकर पैसा नहीं कमा सकते ज्यादा, या कॉमर्शियल नहीं है, वो सिर्फ फैमिली का भरण पोषण हो सकता है, तो उसे सबसिस्टेंस टाइप फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। सो इंडियन एग्रीकल्चर कैसा है, यहाँ पे जो किसान है, छोटे किसान है, मार्जिनल फार्मर्स है, तो वो सबसिस्टेंस टाइप की फार्मिंग करते हैं, ठीक है। Commercial crops like potato, sweet potato, tomato, chilies, groundnut, cashew nut, tobacco, and American cotton were introduced in the country by the Portuguese, जो हमने उस टेबल में अभी पढ़ा, during 16th century AD. Okay? In Middle Ages, no need to remember. No need to remember nothing. The agriculture as a science, scientific agriculture. Here are the things which you need to remember. First, the experiment pertaining to plant nutrition is a systematic way initiated by von Helmont, is a very important scientist which you should remember. You will get to know about these scientists in जो एग्रोनॉमी फैक्ट्स है उसमें आपको ये साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे। ओके, वॉन हेलमंट इन्होंने कहा था दैट प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर। व्हेन दी लाइक साइंस जस्ट स्टार्टेड, तो हर एक चीज एक बेसिक लेवल से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो बेसिक लेवल में आप जैसे मान लो हमें कुछ फॉर से हमें चावल पकाना है, तो हमें पहले नहीं पता था कि चावल कुकर में पकता है, ठीक है। वो स्लोली स्लोली कुकर बना। पहले क्या करते थे हम, लाइक हमें आग में मिट्टी के बर्तन में या किसी पानी में उसको रख के उसको थोड़ा आग दे दिया, तो हमने देखा कि भाई भाप से पक रहा है, ठीक है। तो स्लोली स्लोली हमने जाना है। तो वैसे ही जब हमें फोटोसिंथेसिस की जो जानकारी है वो स्लोली स्लोली हुई है कि प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर। ओके, तो ये उनकी स्टेटमेंट है। तो ये वॉन हेलमेंट साइंटिस्ट जो है ये आपको याद करना पड़ेगा। Next is Jethro Tull, very important scientist, conducted several experiments and published a book, Horse Hoeing Husbandry. Very important book written by Jethro Tull. Okay, his experiments are mostly on cultural practices and they led to the development of seed drill. So, the development of seed drill is who did it? It is Jethro Tull. Book who wrote Horse Hoeing Husbandry? Jethro Tull. Horse drawn cultivator also developed by Jethro Tull. Okay. Then next Arthur Young. आर्थर यंग एक साइंटिस्ट थे
जिन्होंने पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए to increase the yield of crop by applying several materials like poultry dung, niter, gunpowder, etc. He published his work in 46 volumes as Annals of Agriculture. Very, very popular book, and it is important. Scientist name is important. So, who wrote Annals of Agriculture? Arthur Young. In how many volumes? 46 volumes. Okay. Then the development of branches of agriculture. और ये मैंने एग्रीकल्चर बताया कि एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है. अब यहाँ हम पढ़ाएंगे कि एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी के अलावा कितनी ब्रांचेस. ठीक है. तो फर्स्ट इज सॉइल साइंस. ठीक है. सॉइल साइंस में हम क्या कर रहे हैं? सॉइल की स्टडी. सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. इसमें आते हैं फर्स्ट साइंटिस्ट सर हम्फ्री डावी. He published his book Elements of Agricultural Chemistry in 1831. Year is also important. Who published it and what was the name of book? तीनों चीजें important है. ठीक है. Then about 1837, Sir John Bennett Leaves, very important, began to experiment on the effects of manures on crop. Okay. A truly scientific approach to farming was started in 1840 by Justice Von Liebig. ये आपको एग्रोनॉमिक फैक्ट्स बाय आर एस मीना सर में भी मिल जाएगा कि ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच टू फार्मिंग किसने स्टार्ट की थी और कब स्टार्ट की. तो इट इज जस्टिन वॉन लीबिग इन 1840. His classical work on agricultural chemistry and physiology launched systematic development of agriculture. ठीक है. एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर भी कहे जाते हैं जस्टिस वॉन लीबिग. फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री is Justice von Liebig. In 1842, Leaves patented a process of treating phosphate rock to produce superphosphate and thus initiated the synthetic fertilizer industry. Earlier, people were not knowing कि fertilizer भी कुछ होता है. क्या करते थे पहले लोग? जो सड़ा हुआ गोबर होता था उसको एज अ खाद यूज करते थे अपने खेत में. ठीक है. बट इन 1842 द सिंथेटिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का जो शुरुआत कहाँ से हुई कि लेव जो अंकल थे उन्होंने क्या किया, रॉक फॉस्फेट को ट्रीट किया H2SO4 से और उसको बनाया सुपर फॉस्फेट. ओके. सो इसके बारे में आप और किताबों में पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ब्रांच इज सॉइल साइंस जिसमें हम सॉइल का पूरा पढ़ते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. दीज आर साइंटिस्ट विच आर इम्पोर्टेंट व्हेन वी स्टडी सॉइल साइंस. सो ये इंट्रोडक्शन है. आप सॉइल साइंस पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल पढ़ेंगे. ओके. देन कम्स द प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं कि प्लांट में जेनेटिक लेवल पे कुछ बदलाव करके या क्रॉसिंग करके हम अपने मतलब ह्यूमंस के लिए जो प्रॉफिटेबल वेराइटीज हैं उनको डेवलप करें या अच्छे प्लांट्स डेवलप करें जो ज्यादा प्रोडक्शन दे, डिजीज रेजिस्टेंट हो. ठीक है. तो प्लांट ब्रीडिंग का ये एम है. ठीक है. सो डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ हेरिडिटी एंड वेज टू कॉज म्यूटेशन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल इन 1866. अगर जिसका 12th में बायोलॉजी होगा उनको पता होगा ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत महान आदमी है. क्रॉसिंग का पूरा सिस्टम ही उन्होंने डेवलप किया कि कैसे क्रॉस होता है, कैसे F1 होता है, F1 की सेल्फिंग करते हैं तो कैसे F2 जनरेशन आती है. ठीक है. In 1876, Charles Darwin published the results of experiment on cross and self-fertilizer in plants. चार्ल्स डार्विन भी बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं इन बायोलॉजी. ओके. सो इन्होंने क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजर इन प्लांट्स पे अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए थे 1867. ठीक है. सो एप्लीकेशन, हम जेनेटिक्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं प्लांट को मॉडिफाई करने के लिए, ह्यूमंस के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए. ठीक है. सो हम वाइल्ड प्लांट्स जो होते हैं वो जनरली क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं. तो हम उसके जीन्स निकाल के अपने डोमेस्टिकेटेड प्लांट में डाल के उसको हम ज्यादा रेजिस्टेंट बना रहे हैं. ठीक है. ये हमारा प्लांट ब्रीडिंग में काम होता है. एंड द थर्ड ब्रांच इज एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या होता है, इम्प्रूविंग फार्म मशीनरी, इम्प्लीमेंट्स. ठीक है. जो भी हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं. इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the first successful tractor was built in US in 1892. ठीक है. ये आपको ईयर याद करना है. देन एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी. एंटोमोलॉजी में हम
इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं कि कौन से इंसेक्ट प्लांट पे कब इफेक्ट कर रहे हैं, क्या सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी में हम डिजीज और अब एबायोटिक फैक्टर से होने वाले डिसऑर्डर्स, इनकी बात करते हैं। अब डिजीज और डिसऑर्डर्स में अंतर, ठीक है। डिजीज जो होता है बायोटिक फैक्टर द्वारा होता है। बायोटिक फैक्टर मतलब बैक्टीरिया, फंगस, ओके, ये जो हो रहे हैं वायरस और, ठीक है, दीज आर डिजीजेस। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? डिसऑर्डर्स आर द थिंग लाइक जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट में, वो अगर एबायोटिक फैक्टर्स द्वारा कॉज किए गए हैं, मतलब कि जैसे कि सनलाइट, वाटर की वजह से, एक्स्ट्रा सैलिनिटी की वजह से, ऐसे जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट्स में, तो वो डिसऑर्डर कहलाता है। तो डिजीज एंड डिसऑर्डर्स, आई होप क्लियर हो गया होगा, दे आर डिफरेंट थिंग। ओके, वन इज कॉज्ड बाय बायोटिक फैक्टर एंड वन इज कॉज्ड बाय एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है। देन कंट्रोल, द फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज कंट्रोल ऑफ ग्रेप वाइन पाउडरी मिल्ड्यू इन यूरोप इन 1840s। ये पहला सक्सेसफुल लार्ज स्केल कॉन्क्वेस्ट था एक पेस्ट का बाय केमिकल मींस, ओके, 1840s में। देन डीडीटी वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन 1874 बाय डॉक्टर पॉल मुलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि नाउ अडेज डीडीटी इज बैंड, क्यों? क्योंकि डीडीटी का इफेक्ट, जब डीडीटी का डिस्कवरी हुआ था तो बहुत हुआ कि लाइक ओ डीडीटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एंड ऑल, बट आफ्टर सम इयर्स इट वाज फाउंड दैट जो डीडीटी का जो क्या बोलते हैं रेसिड्यू है, वो मिल रहा है जो पंछी होते हैं उनके शेल में, उनके एग शेल्स जो हैं वो थिन हो रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, ऐसा कुछ पता चला था जिसकी वजह से लेटर ऑन हमको ये बैन करना पड़ा डीडीटी। ठीक है। देन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट लाइक एग्रीकल्चर को मैनेज करना है तो हमको कुछ इनपुट लगाने होंगे, कुछ इनपुट लगाने के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए, वो पैसे मैनेज करना, फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन हुआ उसको हम बेच के कुछ पैसे कमाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर, सो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो। ओके, देन then the scientific agriculture in India, very important. In 1870, a joint Department of Agriculture, Revenue and Commerce was established. Joint Department of Agriculture, Revenue and Commerce. ये चीज आपको एग्रोनॉमी फैक्ट्स के फ्रंट में कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, 1870 ये ईयर याद रख। लेटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फेमाइन कमीशन, फेमाइन कमीशन कब आया? 1880 में। ये चीज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में आगे दी हुई है। ठीक है। A separate department of agriculture was started with the object of increasing food production for local people and industrial raw material for export. In 1903, Imperial Agriculture Research Institute was started at Pusa in Bihar. Okay, Imperial Agriculture Research Institute start हुआ, and this gave a fillip to agricultural research in India. एक agriculture research को boost मिला इसकी वजह से। Later on in 1912, sugarcane breeding station was established in Coimbatore as a branch of Imperial Agriculture Research Institute, Pusa. 1912 में शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन स्टार्ट हुआ कोयम्बटूर में। ठीक है। एंड 1903 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको अभी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, after earthquake in 1936, Imperial Agriculture Research Institute was shifted from पूसा to दिल्ली। 1936 में पूसा बिहार में बहुत भयंकर earthquake आई थी, जिसकी वजह से वहां पे जो बिल्डिंग थी वो पूरी नष्ट हो गई, जो भी फैसिलिटीज वहां डेवलप की गई थी तब तक वो सब नष्ट हो गई। तो उसको क्या किया गया, उस इंस्टीट्यूट को उठाकर दिल्ली में लाके उसको स्थापना की गई। ठीक है। उसके बाद से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, एस्टेब्लिश होना। So first agriculture university which was established in India was G.B. Pant. G.B. Pant University which was established in 1960. First state agriculture university. Okay. Then the principles of agronomy. The important principles of agronomy are related to cropping system, tillage, crop establishment, nutrient management, water management, weed management, pest and disease management, harvesting and storage. These are the principles which we do under agronomy. ठीक है।
क्रॉपिंग सिस्टम हम डिसाइड करेंगे। आगे हम चैप्टर में सब कुछ पढ़ेंगे, ओके। एंड टिलेज मतलब जुताई जो होगी, जुताई करेंगे तभी हम सीड हम लगा बो सकते हैं, तभी वो उसमें जर्मिनेशन होगा, ओके, बिकॉज उसको प्रॉपर सनलाइट प्रॉपर एयर मिलेगी। क्रॉप एस्टैब्लिश, अब सीड हमने बोया, उसके बाद वो क्रॉप एस्टैब्लिश होगा, प्लांट बनेगा। उसके बाद उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, वाटर मैनेजमेंट करना होगा, अलग अलग स्टेज पे हमें इरिगेट करना होगा, वीड मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि जब क्रॉप ग्रो करता है तो सिर्फ क्रॉप नहीं ग्रो करता, उसके साथ बहुत सारे घास फूस भी और सारी चीजें भी ग्रो करती है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो वीड मैनेजमेंट करना होगा, पेस्ट एंड डिजीज आएंगे, उसका मैनेजमेंट करना है, हार्वेस्टिंग है, स्टोरेज है। सो ये जो पूरा फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग स्टोरेज तक पूरा जो ये प्रोसीजर है वो सब किस में आएगा, अग्रोनॉमी में। It also helps in cultivation of vegetable, horticulture crops and forest trees. Principles of agronomy very important है. Okay, proper crops and cropping system can be selected to suit the existing climatic condition of the region or place. Okay, this you can study. It's very like normal. Like water management in both rainfed and irrigation condition. Rainfed and irrigated condition में अंतर है, ठीक है? Rainfed मतलब कि पूरा जो वो वो खेती है वो पूरी रेन पे डिपेंडेंट है। हम बाहर से उसको इरिगेट करने के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कोई ग्राउंड वाटर की व्यवस्था नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, नहीं है कुछ। ठीक है, जो भी पानी हमारा खरीफ सीजन में आ रहा है साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से, उसकी उससे ही हम जितनी खेती कर पा रहे हैं वो क्या हो गई, रेनफेड। ठीक है, इरिगेटेड क्या हो गया कि हम थ्रू आउट द ईयर पूरे 12 महीना हम खेती को पानी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, दैट इज इरिगेटेड। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, रेनफेड में प्रोडक्शन ज्यादा होगा कि इरिगेटेड में? ऑफ कोर्स इरिगेटेड में होगा। क्यों? क्योंकि जब हमें पानी की रिक्वायरमेंट है हमारे पास पानी अवेलेबल है। सो अगर हम किसी भी क्रॉप को जितनी अच्छी केयर दे पाएंगे वो उतना अच्छा ग्रो करेगा। सो रेनफेड में हमेशा प्रोडक्शन कम आएगा और इरिगेटेड में हमेशा प्रोडक्शन ज्यादा है। ठीक है, देन वीड मैनेजमेंट हेल्प इन एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ वीड। हमें डिफरेंट टाइप के वीड मैनेजमेंट करने होंगे। हैंड वीडिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल वीडिंग कर सकते हैं, हम डीप समर प्लॉइंग कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देन लास्ट में आता है केमिकल प्लॉइंग। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में ही डाल दिया केमिकल खत्म करो, हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब केमिकल अप्रोच भी यूज कर रहे हैं, कल्चरल अप्रोच भी यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल अप्रोच भी यूज कर रहे हैं, ये आप आगे वेट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। Pest and disease management is necessary for reducing the loss due to pest and diseases. Proper time of harvesting. अगर प्रॉपर टाइम पे हार्वेस्ट नहीं करोगे, उसमें कई प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं, उसका बारिश हो जाए, सड़न पैदा हो जाए, तो एक समय पे हमें हार्वेस्ट करना होगा। सुटेबल ड्राइंग टेक्नोलॉजी, ड्राई नहीं करो। अगर जो वाटर कंटेंट है वो सीड में ज्यादा है तो फंगस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, स्टोरेज के समय इंसेक्ट पेस्ट का अटैक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, and good storage methods are essential for higher returns from crop production. Then the major events of agronomy: zero tillage, minimum tillage, no-till farming. This we'll study in the tillage chapter. Crop establishment in the absence of rain by row water sowing. ठीक है, रो वाटर सोइंग मतलब कि उसी रो में जिस रो में सोइंग कर रहे हैं उसी में हम वाटर का जो है, अगर वाटर कम है हमारे पास, ठीक है, तो हम वाटर को बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छे से यूज करेंगे उसको। लाइक जहां इंपॉर्टेंट है वहीं यूज करेंगे, ऐसे नहीं कि पूरे खेत में हम फ्लडिंग कर दे रहे हैं। फ्लडिंग में क्या है, बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, बहुत सारा इवेपोरेट हो जाता है, बहुत सारा नीचे डीप परकोलेट हो जाता है। तो हम जब हमारे पास पानी की कमी है तो उसको इफिशिएंटली यूज करना चाहेंगे। ठीक है, तो रो वाटर सोइंग मतलब जिस रो में सोइंग हो रही है सिर्फ वाटर उसी रो को हम प्रोवाइड करें। क्रॉप एस्टैब्लिशमेंट अंडर जीरो टिलेज कंडीशन। जीरो टिलेज कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिपीटेटिव अगर हम टिलेज करते हैं तो रिपीटेटिव टिलेज से क्या होता है, सॉइल का स्ट्रक्चर खराब होता है। अभी क्या है, अगर हम सॉइल का टेस्टिंग करें, मेजोरिटी ऑफ इंडिया की लैंड का सॉइल डिग्रेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसमें हम फर्टिलाइजर इतना डाल रहे हैं, इतना डाल रहे हैं, मतलब कि वो अब सॉइल जो है वो जीवित नहीं है, उसको वो डिजीज हो चुकी है। ठीक है, तो पहले क्या करते थे, पहले खाद डालते थे, गोबर खाद डालते थे, क्रॉप का रेसिड्यू डालते थे, और जो है पहले बैल और हल की से जुताई होती थी। अब मशीन से टेक्नोलॉजी हमारे पास तो करे जा रहे हैं जुताई। ठीक है,
तो उससे क्या हो रहा है कि सॉइल का स्ट्रक्चर बहुत ही डिस्ट्रक्ट हो चुका है, बहुत खराब हो चुका है। तो इस वक्त हमें क्या जरूरत है, हम जीरो टिलेज अपनाने की जरूरत है कि हम सॉइल को बिना डिस्टर्ब किए हम सिर्फ वहीं पे छेद करेंगे जहां पे हमें सीड सो करना है, rather देन हम पूरी सॉइल का स्ट्रक्चर बर्बाद करें। ठीक है, तो ये जीरो टिलेज कंडीशन। सोइंग विद एक्वा प्लांटर मतलब एक बड़ा सा टैंक लगा होगा पीछे, मतलब वो ट्रक के पीछे, एंड वो जहां पे सोइंग करना है वो वहीं पे पानी इनपुट करेगा। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रॉप्स इन राइस फॉलोज। यूरिया मैन्युफैक्चरिंग इज द मेजर ब्रेक थ्रू इन द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जब से यूरिया आया है तो क्या नाइट्रोजन की हमें जरूरत है, उठाओ बैग उठाओ यूरिया डाल दो। ठीक है, तो इनिशियली इट वाज गुड, बट नाउ अडेज अब जो फर्टिलाइजर्स एक्सेस में यूज कर रहे हैं फार्मर्स, वो कहीं ना कहीं सॉइल को डैमेज कर रहा है। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, क्रॉप ड्रेसिंग ऑफ फर्टिलाइजर। क्रॉप ड्रेसिंग का मतलब है कि क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप है वहां पे, मतलब फील्ड में, अब हमें लग रहा है कि हमारे जो क्रॉप है उसको फर्टिलाइजर की जरूरत है, तो जो हम ऊपर से डालते हैं, व्हेन क्रॉप इज स्टैंडिंग देयर एंड देन वी आर अप्लाइंग फर्टिलाइजर, दैट इज टॉप टॉप ड्रेसिंग। फोलियर एप्लीकेशन इज जब हम लिक्विड में मिला के उसको फोलिएज पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फोलियर एप्लीकेशन है। ड्रॉप ड्रेसिंग, नाइट्रोजन, जिंक, आयरन, जनरली हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ड्रॉप ड्रेसिंग करते हैं। नाइट्रोजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेसल एप्लीकेशन हम किसका करते हैं, बेसल मतलब कि सोइंग से पहले हम मिट्टी में खाद को मिलाएंगे, मिट्टी में फर्टिलाइजर को मिलाएंगे। कौन से फर्टिलाइजर्स को, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन को हम आधा बेसल देंगे, उसके बाद हम सब्सिक्वेंट स्टेजेस पे जिसपे उसको जरूरत पड़ेगी प्लांट को, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, फॉर फोर्टिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट इन ग्रेन। फोर्टिफिकेशन का मतलब कि जो न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन है ग्रेन में उसकी क्वांटिटी बढ़ना, उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मतलब जहां पे पानी इरिगेशन की सुविधा नहीं है, कि वहां पे हमें सॉइल और मॉइस्चर का कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी होता है। पॉट वाटरिंग, पॉट का यूज करके। drip and sprinkler irrigation methods, these are the new techniques which have come, okay? So drip and sprinkler irrigation में हम क्या है, फ्लड में क्या होता है कि हमने पूरा पानी से खेत डुबो दिया, आफ्टर दैट हम 2-3 दिन वेस्ट करते हैं कि भैया पानी कुछ एवापोरेट हो, कुछ भी परकुलेट हो, तो थोड़ा जो सॉइल है वो वर्किंग कंडीशन में आए। तो उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज करके कम पानी में अच्छी उपज पा सकते हैं। Water requirement of crops, its calculation got boost in the research with FAO publication. हर क्रॉप का अपना अपना वाटर रिक्वायरमेंट है, जो कि FAO ने पब्लिकेशन किया था उसका। सो उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि लाइक फॉर से शुगर केन में ज्यादा पानी की आवश्यकता है, राइस में ज्यादा पानी की आवश्यकता है। तो हम अगर हमें क्रॉप का रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट पता होगा, और हमें पता है कि हमारे यहाँ बारिश कितनी हो रही है, तो हम उससे मैच करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे खेत में कौन सी क्रॉप सुटेबल है, कौन सी क्रॉप हमें उगानी चाहिए, कौन सी क्रॉप प्रॉफिटेबल है। ठीक है, फार्म पॉन्ड टेक्नोलॉजी मतलब हमारे जो मान लो 1 हेक्टेयर का एरिया है, तो 1/10 ऑफ द होल एरिया हम फार्म पॉन्ड बनाएंगे, जिसका मतलब खरीफ मतलब कि साउथ वेस्ट मानसून जब आएगा तो पानी उसमें स्टोर होगा, उस स्टोर्ड पानी को हम इरिगेशन में यूज करेंगे। ठीक है, देन प्रोटेक्टिव इरिगेशन मतलब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में क्योंकि हमारे पास पानी नहीं होता ज्यादा, तो हम प्रोटेक्टिव इरिगेशन यूज करते हैं कब, जब प्लांट को बहुत ज्यादा जरूरत है, उस टाइम पे हम उसको थोड़ा पानी दे रहे हैं टू सर्वाइव, जस्ट टू कि हम उसको सर्वाइवल में हेल्प करने के लिए जो पानी दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव इरिगेशन। देन मोबाइल इरिगेशन, इट्स लाइक using the mobile techniques, like we are sitting here, हमारा खेत 10 किलोमीटर दूर है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्विच ऑन कर दिया वहां पे इरिगेशन चालू हो गया, यहाँ स्विच ऑफ कर दिया वहां पे इरिगेशन बंद हो गया। इससे क्या हो गया, कन्वीनियंट हो गया। ठीक है, रो वाटर इरिगेशन, रिजिस एंड फरोज बनाइए, फरोज पे हम पानी दे रहे हैं, रिजिस मतलब जो ऐसे ऊंचा रहता है, एंड फरो मतलब जो गड्ढा सा रहता है। ठीक है, तो ऐसे रिजिस एंड फरोज होती है, तो फरोज में हमें पानी इरिगेट करते हैं, तो ये रो वाटर इरिगेशन है। Chemical weed control started with identification of 2,4-D as herbicide. Then relation of agronomy with other sciences. Agronomy अकेले काम नहीं कर सकता.
अग्रोनॉमी के लिए जैसे अगर हमें कोई क्रॉप उगानी है, ठीक है, जैसे कि हमने राइस लगाई, तो राइस जब हम लगा रहे हैं तो हमें सॉइल साइंटिस्ट की भी हेल्प चाहिए। क्यों चाहिए सॉइल साइंस की हेल्प? पहले हम क्या करेंगे, खेत की मिट्टी का जगह जगह से सैंपल लेंगे, उसको मिक्स करेंगे, उसको 500 ग्राम तक लाएंगे, उसको सॉइल सैंपल को हम सॉइल टेस्ट लैब में भेजेंगे। उस लैब की रिपोर्ट आएगी, उसमें कुछ उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे। सॉइल साइंस का काम बढ़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सोइंग की, टिलेज विलेज करके सोइंग की। सोइंग करने के बाद हमारी क्रॉप ने धीरे धीरे पकड़ना चालू किया। इंसेक्ट आएगा, वीड आएगा, पेस्ट आएंगे। ठीक है, इंसेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, एंटोमोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा इंसेक्ट कौन से स्टेज पे आएगा, क्या सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, या क्या केमिकल यूज करेंगे हम उसको मैनेज करने के लिए। सो जब हम कोई अगर हम एग्रोनॉमी का पढ़ रहे हैं तो हमें डिफरेंट जो और ब्रांचेस है एग्रीकल्चर के उसके बारे में पता होना चाहिए। विदाउट उसके हम एग्रोनॉमी मतलब हम क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एग्रोनॉमी इज व्हाट? एग्रोनॉमी इज क्रॉप प्रोडक्शन। In crop production, what we do? We manage soil, we manage land, we manage crop. Okay. The herbicidal properties of 2,4-D have made revolutionary changes in weed control. Very important. 2,4-D एक herbicide है जो कि जब उसका इंट्रोडक्शन हुआ, जब उसका सिंथेसिस हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ फॉर द weed control. Okay. The important management practices are tillage, seeds and sowing, nutrient management, water management, weed management, harvesting, storage and marketing. These comes under the agronomy. ठीक है, the flow chart showing the development of agriculture, collection and gathering, showing of crop, not so important. You can skip that. Lodging resistant variety. Lodging क्या होता है? Lodging मतलब कि मान लो क्रॉप लगी है, ठीक है, अब क्रॉप का जो स्टेम है वो ज्यादा स्टर्डी नहीं है, ताकत वाला नहीं है, ठीक है, और बहुत जोर से हवा आई, इतनी ज्यादा हवा आई कि वो जो पूरा प्लांट है वो पूरा खेत में से सो गया। ठीक है, अब उसको हार्वेस्ट करने में दिक्कत होगी, उसको हम कहते हैं लॉजिंग। ठीक है, तो जनरली जो प्लांट ब्रीडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो डेवलप ऐसी वेराइटीज डेवलप करते हैं व्हीट एंड राइस की, या ऐसी वेराइटीज डेवलप करना चाहते हैं जो लॉजिंग रेजिस्टेंट हो, जिससे क्या हो कि एक सर्टेन लेवल की हवा, स्पीड की हवा वो क्या बोलते हैं, झेल जाए। ठीक है, जिससे लॉजिंग ना हो। लॉजिंग होगी तो उसमें जो पूरा प्लांट बिछ गया नीचे, तो डिजीज का खतरा, इंसेक्ट पेस्ट का खतरा, फिर हार्वेस्टिंग में दिक्कत होगी। सो ये लॉजिंग रेजिस्टेंट वेराइटीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, देन स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, बहुत ज्यादा स्कोप है भाई। एग्रोनॉमी इज अ डायनामिक डिसिप्लिन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल एग्रोनॉमी इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर इज इंक्रीजिंग बट एरिया अंडर कल्टिवेशन इज स्टैटिक। सो हमें ऐसी टेक्निक्स लानी है कि उस कम एरिया में भी हम ज्यादा प्रोडक्शन लेके जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसका पेट भर सके। ठीक है, एग्रोनॉमिस्ट का रोल क्या है? एग्रोनॉमिस्ट एम्स एट ऑब्टेनिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। ही एक्सप्लॉइट्स, मतलब कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना है लेकिन हमारा इनपुट कॉस्ट कम लगे। इनपुट कॉस्ट मतलब कि सीड में कम पैसा लगे, मैन्युअर फर्टिलाइजर में कम पैसा लगे, हम ऐसे दिमाग से खेती करें। ठीक है, तो एग्रोनॉमिस्ट क्या करता है, उस टेक्निक्स को डेवलप करने में मदद करता है। So he exploits the knowledge developed by basic and allied applied sciences for higher crop production. Higher crop production is the main aim. Okay. Agronomist is concerned with the production of food and fiber to meet the needs of growing population. Agronomist carries out research on scientific cultivation of crop, taking into the account for effect of factor like soil, climate, variety, crop adjustment and production techniques suitably suited depending on the situation. हर जगह पे अलग अलग अग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स लगते हैं। ठीक है, लाइक ड्राईलैंड में हम कुछ और प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, रेनफेड में हम कुछ और प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, और इरिगेटेड में हम कुछ और। ड्राईलैंड और रेनफेड में थोड़ा अंतर है, वो आप आगे आगे चैप्टर्स में मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें क्लियरली समझ आ जाएगा। He is a key person, he or she. Okay, here they should write she also because agronomist can be a girl or a woman also. He's a key person with working knowledge of all agriculture discipline and coordinator of different subject matter specialist. अग्रोनॉमिस्ट अकेले काम नहीं कर सकता, उसको एंटोमोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, उसको प्लांट पैथोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, उसको सॉइल साइंटिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसे करके सारा जो एग्रीकल्चर के सारे ब्रांचेस है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करें। ओके,
आई होप आपको ये चैप्टर पसंद समझ आया होगा. So yeah, this was it, the first chapter. I will meet you for the with the second chapter, that is climate, in the next video. So till then, thank you and have a good day. Bye.